Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु, मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। प्रभु मैं जीवन, प्रभु मैं जीवन बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु, मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। प्रभु की मूर्ति है
प्राण तुम्हारा ब्रह्मा नियंत्रित है पल पल तुम्हारा। मेरा तंत्र ऐसा ही, मेरा तंत्र ऐसा ही बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। चिदाकाश जैसा हृदय है तुम्हारा, चिदाकाश जैसा हृदय है तुम्हारा। है सौभाग्य हमको जो तुमने स्वीकारा। रागों से प्रीति, रागों से प्रीति हटा दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। दिव्य लगे सब क्रियाएं तुम्हारी, दिव्य लगे सब क्रियाएं तुम्हारी। ऐसी रहे काका दृष्टि हमारी। निर्दोष भूल का, निर्दोष भूल का बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। मेरे मन को मंदिर बना दो गुरु। धामधामी मुक्तोनी સાથે હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. કોઈ મુક્તની દ્રષ્ટિ વાળે, કોઈ મુક્તની દ્રષ્ટિ વાળે, આહો ભાવની દિવ્ય પડે, આહો ભાવની દિવ્ય પડે. દિવ્ય સંતે આત્મને દિવ્ય કરવાને દિવ્ય હેત કર્યું, જી કર્યું, જી કર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જી ખર્યું, જી ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. ઘર મંદિર કે કારખાના, ઘર મંદિર કે કારખાના, એ ઉદ્યમ છે માયા પાર જવાના, એ ઉદ્યમ છે માયા પાર જવાના. આજ્ઞામાં મન બુદ્ધિ દેહ પરોવ્યા, એટલું જીવ્યા તે જીવ્યું, તે જીવ્યું, તે જીવ્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું.
હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જે ખર્યું જે ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. સ્વામીને સ્વામીનું કરવા દેવું, સ્વામીને સ્વામીનું કરવા દેવું, દેહ દેહ ભાવથી જુદા રહેવું, દેહ દેહ ભાવથી જુદા રહેવું. અંગૂઠે કમાડ ટેલી મૂર્તિ મળશે વહેલી, અંતર રહેશે ભર્યું જી ભર્યું જી ભર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જે ખર્યું જે ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. સ્થિતિ કરવાનું તાન મૂકી, સ્થિતિ કરવાનું તાન મૂકી, સ્થિતિ વાળાને માનવા મંડી, સ્થિતિ વાળાને માનવા મંડી. મનભેદ મૂકી દઈ, મતભેદમાં ઝૂકી દઈ, કરવું એનું ધાર્યું જે ધાર્યું જે ધાર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જે ખર્યું જે ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. રંક છીએ પણ રાખ નથી, રંક છીએ પણ રાખ નથી, રાખ બનશું એના સંકલ્પથી, રાખ બનશું એના સંકલ્પથી. રહેશે ચિંતામણી ઓગળી જતા કણી, અખંડ સુખ રહેશે નર્યું જી નર્યું જી નર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. ધામધામી મુક્તોની સાથે, મુક્તોની સાથે. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. હસતા રમતા જગત ખર્યું, હસતા રમતા જગત ખર્યું, જે ખર્યું જે ખર્યું. હે જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું, જીવન જીવવાનું સૌભાગ્ય જેને મળ્યું. सदानंद स्वामी महाराज की जय। आप सभी को मुंबई से रवि गुजर का जय श्री स्वामीनारायण। हाल ही में मुंबई स्थित पवई अक्षरधाम मंदिर में हमारे दो वरिष्ठ संत परम पूज्य अरुण भाई और परम पूज्य बापू ये अक्षरधाम चले गए। ये एक कुदरत का करिश्मा है कि दोनों बंधु एक दूसरे के पीछे अक्षरधाम निकल गए। हमें खेद है। 19 तारीख को हमने बापूजी का प्रागट्य दिन मनाया और 21 तारीख को उनका
अक्षरधाम प्रस्थान हुआ। हम जानते हैं कि इसके बाद हमें परम पूज्य अरुण भाई, परम पूज्य बापूजी का प्रकट दर्शन नहीं होगा, मगर फिर भी उन्होंने हमें दिए हुए विचार, उनके आशीष वचन, उनकी शिक्षा हमारे साथ रहेगी। मैं उनके चरण कमल को स्पर्श करते हुए इन दोनों बंधु जोड़ी को सहर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे तो गुणातीत समाज में मेरा आना, इसको बहुत कालावधि नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि अभी भी मैंने एंटर किया है। पवई मंदिर में हम हमेशा 7 तारीख को भजन संध्या को जाते हैं। वहाँ के हर प्रोग्राम में हम हिस्सा लेते हैं। इनफैक्ट अभी वहाँ से आयोजित की हुई अहमदाबाद की, गुजरात की स्वामीनारायण संप्रदाय की पंचतीर्थ की यात्रा भी हमने की। वहाँ काफ़ी संतों से हमारी मुलाकात हुई, उनके साथ सत्संग हुआ, उनकी बातें सुनने का मौका मिला और धीरे धीरे हम स्वामीनारायण संप्रदाय के गुणातीत समाज में शरीक होते गए। वैसे देखा जाए तो इसके पहले भी मैंने काफ़ी अलग अलग सेक्ट की, अलग अलग लोगों की फिलॉसफी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ी। इसमें और आचार्य रनीश का ओशो पंथ है, चैतन्य स्वामी का हरे राम हरे कृष्ण पंथ है, श्री श्री रविशंकर जी का पंथ है, रामदास स्वामी का वो मैंने, रामदेव बाबा को मैंने अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की। मगर हमेशा यही लगता था कि इस सारे सेक्ट में हमें आज के तारीख के वर्तमान हमारा जो जीवन है वो सुधरने का मौका तो जरूर मिलता है। हमें मिलेगा सुख, हमें मिलेगा सौख्य, हमें मिलेगी अच्छी नौकरी, हमें मिलेंगे अच्छे घर दार, अच्छी फैमिली, मगर जो नहीं मिलने वाला है, जो मैंने काफ़ी ढूंढा, उसके लिए तरीके ढूंढे, मगर हमें वो कहीं नहीं नजर आया, वो था कि जन्म जन्मांतर का फेरा के परे जाते हुए हम आत्मा को मुक्ति मिले, ऐसे कहीं भी हमें नजर नहीं आया। गुणातीत समाज में जब यहाँ तक हम आ गए थे तो हमें लगने लगा कि ये यही जगह है जहाँ हमें मुक्ति मिल सकती है। अभी भी मुझे याद है वो दिन, शायद सितंबर की धुआंधार बारिश में पंजाब से मुंबई जाने वाली ट्रेन से मुझे दिल्ली में उतरना पड़ा क्योंकि आगे के रास्ते बंद हो चुके थे। और ऐसे हालात में मैं यही सोच रहा था कि अब मैं दिल्ली स्टेशन पे बैठ के क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर है, यहाँ गुरुजी हैं। इन के बारे में हमने पवई मंदिर में काफ़ी सुना था, समझा था, तो मैं सीधा वहाँ चला गया। जब मैं गुरुजी के सन्मुख खड़ा था तो पानी से पूरा भीगा हुआ था, शरीर से पानी बह रहा था और गुरुजी के सामने मैं थर-थर कांपते हुए खड़ा था। गुरुजी ने दयार्द दृष्टि से मेरी तरफ देखा, मुझे कुछ चंद सवाल पूछे। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे वहाँ ठहरने की अनुज्ञा दे दी। यही थी मेरी गुरुजी के साथ की पहली मुलाकात, जो आज भी उनकी सुहास्य और दयार्द नज़र मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बैठी हुई है। इस तरीके का हमारा ये गुणातीत समाज, गुणातीत समाज में हम जब आए ही हैं तो यहाँ आना, यहाँ का एंट्री होना, यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल रहेगा, क्योंकि इतनी आसानी से गुणातीत समाज में किसी को प्रवेश नहीं मिलता। भगवान स्वामीनारायण ने
स्वामीनारायण संप्रदाय के हर भक्त को एक अभिवचन दिया हुआ है कि हर युग में मैं हर संत, जो भी संत रहेंगे, उनके द्वारा प्रकट होते हुए आपको दर्शन देता रहूँगा और मैं आपको आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूरी करता रहूँगा और उन्हीं संतों के द्वारा मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। ये अभिवचन किस तरीके से सही है, इसको अगर हमें देखना है तो हम गुणातीत स्वामी के बाद की गुरु परंपरा को देख लेते हैं। गुणातीत स्वामी के बाद भगत स्वामी, अड्याल स्वामी, उनके बाद आए हमारे शास्त्री जी महाराज, योगी जी बाप्पा, काका जी महाराज और आज के सारे प्रकट स्वरूप संत। इन सारे में हमें भगवान स्वामीनारायण के दर्शन होते हैं। इन्होंने जो कार्य आज तक किए हुए हैं वो कार्य भी इतने महान हैं कि जिसका किसी के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही बापा जी हैं जिन्होंने परम पूज्य काका जी को साक्षात्कार दिलाया। साक्षात्कार के 72 घंटों में काका जी, परम पूज्य काका जी का आमूलाग्र बदल हो गया और वो ब्रह्म चैतन्य स्वरूप काका जी बन गए। इसके साक्षी हैं आज के प्रगट संत, गुरु जी हैं, शिवाई है, भरत भाई है, साहेब जी है, दिनकर भाई है। इन्होंने ये सारे प्रोसेस को उन्होंने देखा है, उसका अनुभव किया है, इसीलिए उन्होंने जो काका जी के प्रति ब्रह्मस्वरूप की जो उनकी श्रद्धा है उसको और दृढ़ित किया। शास्त्री महाराज की एक इच्छा थी कि मैं यहाँ दिल्ली में हमारा गुणातीत समाज स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रसार हो, और ये बापा जी को मालूम था। योगी जी बापा ने ये चीज़ काका जी को कही और काका जी ने इसके लिए उनके पास रहने वाले मुकुंद स्वामी को गठित किया और उनके ऊपर ये कार्यभार सौंप दिया। मुकुंद स्वामी, काका जी को इस चीज़ का विश्वास था कि एक मुकुंद स्वामी ही है जो जिनकी श्रद्धा, जिनकी अतट सेवा व्रत और जिनके कठोर परिश्रम से ये कार्य वो पार कर सकते हैं। आज हम देखते हैं सिर्फ मंदिर ही नहीं तो अक्षरधाम में जितना भी वैभव है वो सारे वैभव उन्होंने इस मंदिर में प्रस्थापित किए। सिर्फ मंदिर बनाना यही एक उनका मकसद था, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि काका जी ने उनको यही बताया था। शास्त्री जी की यही इच्छा थी कि यहाँ संप्रदाय स्वामीनारायण का फले फूले और यहाँ उसकी नींव तैयार हो जाए। गुरु जी की ये प्रायोरिटी थी। उन्होंने यहाँ आने वाले हर व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, आदर, सम्मान, ये सारे गुण उन्होंने उनमें देने की कोशिश की, जिसकी वजह से कितना भी मनमुटाव हो मगर फिर भी एक दिल से काम करते रहे और इसकी वजह से इन सब का आत्मविकास हो। आज दिल्ली समाज, दिल्ली का गुणातीत समाज इसका साक्षी है कि गुरुजी ने ना सिर्फ मंदिर बनाया, एक अलौकिक मंदिर के साथ साथ एक समाज का गठन किया, उसको फैलाया फुलाया और आज हमारे सामने गुणातीत समाज दिल्ली का साक्षात खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अपने गुरुवर्य काका जी को, बापा जी को, शास्त्री जी को ये सारी चीज़ें करते हुए एक गुरु दक्षिणा उनको अर्पित की हो। दिन भर की दिनचर्या के बाद जब सत्संग होता है, उसके बाद खाने के बाद जब हम गुरु जी के साथ बैठते हैं, चंद भक्तों के साथ जो बातचीत होती है, मुझे लगता है मेरे लिए वही सत्संग है। बिकॉज यहाँ राजकारण, समाज कारण, आत्मविकास, ये सारी बातें खुल के होती रहती है और हर एक
वक्त नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। परम पूज्य गुरु जी का ये योगदान बहुत बड़ा है। माना कि हम कोसों मील दूर हैं, मुंबई में रहते हैं, बट जब भी हमें कुछ क्लेश होता है, कुछ दुख होता है, कुछ मन में डिप्रेशन आता है, तो हम सीधा गुरु जी को फ़ोन करते हैं। और जब गुरु जी की वाणी से जय स्वामीनारायण की लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर भाग चली जाती हैं। इतना ही नहीं, जब गुरु जी पूछते हैं रवि जी कैसे हो, तो ऐसा लगता है मानो किसी ने अपने पीठ के ऊपर हाथ रखते हुए हमें एहसास दिलाया है कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। गुरु जी का ये संबंध, गुरु जी का ये सत्संग हमें बहुत भाता है। जिस इंसान को जिंदगी में माँ बाप का प्यार मिला, गुरुवर्य के आशीर्वाद मिले, वो इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है। मगर कई सालों के बाद माँ बाप की जब छाया निकल जाती है तो रोने के लिए कंधे बंद हो जाते हैं। मगर गुरुजी ने हमें वो कंधा दिया जहाँ हम अपने दो आंसू बह सकते हैं। माँ बाप तो ये जन्म में, अगर हम मानते हैं पुनर्जन्म को, जो हमारी हिंदू धारणा है, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि जिस धारणा से पुनर्जन्म को हम समझते हैं, उसी से हमें माँ बाप वापस तो मिल सकते हैं अगले जन्म में। मगर क्या वो गुरुवर्य, वो गुरु जी जो पिछले जन्म में जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, वो मिल सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। हम पीछे दौड़ते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतरिक फेरे की से मुक्ति चाहिए। मगर अगर गुरु जी जैसे गुरुवर्य अगले जन्म में भी हमें मिलते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें नहीं चाहिए वो मुक्ति, हमें चाहिए वो गुरुवचन जो गुरुजी हमें देते हैं, और उनके साथ रहने का, उनके साथ पलटने का हमें एक अवसर और मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय स्वामीनारायण। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 5 વાત 253 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, સત્સંગી જેવા છે તેવા સમજાતા નથી। जैसे हैं कि भाई अक्षरधाम से आए हुए मुक्त हैं, ऐसे हम समझ नहीं पाते। ठीक है, बड़े हैं, संबंध वाले हैं, पर ये अक्षरधाम के संबंध वाले हैं, महाराज के संबंध वाले हैं, और वो मानव स्वरूप में धरती पे आए, वो महाराज के स्वरूप के संबंध वाले हैं। ऐसे मैंने बात नहीं करी थी कि कोई ख्याल पड़े कि इसका तो प्राइम मिनिस्टर के साथ का संबंध है, तो उसकी खातिर हम कितनी करेंगे। वैसे महिमा प्रगट के संबंध वालों का होना चाहिए। સત્સંગી જેવા છે તેવા સમજાતા નથી, સાધુ જેવા છે તેવા સમજાતા નથી, ને પોતાના જીવની પણ ખબર નથી, જે મને કેવા સમર્થ મળ્યા છે। समर्थ मिला है, ब्रह्म स्वरूप संत मिले हैं जो मुझे ब्रह्मरूप करके छोड़ेंगे। ने त्यागी થઈને ટોપી ઘાલી, તેમાં શું ઉગાડ્યું? पहले टोपी पहनते थे त्या संत लोग। हाँ, ભગવાનનો ને મોટા સાધુનો રહસ્ય તો સમજાતો નથી। कि भाई हमने ये टोपी पहनी है, गिरवे वस्त्र पहने हैं,
वो ब्रह्मरूप होने के लिए और कोई फैल फतूर के लिए नहीं। તે રહસ્ય તો એ છે જે બ્રહ્મરૂપ થઈને હેત કરવું ને આ તો વેગે ચડી જવાનું છે। मानो बस सब साधु हो रहे हैं, हम भी हो जावे, ऐसे फेर में आ गए हैं। फेर चढ़ गया जिसको बोलते हैं ना। ત્યાગને વેગે ચડી જવાય, રાગને વેગે ચડી જવાય ને ગપ્પા મારવાને વેગે ચડી જવાય। ग्राम्य कथा करने के कोई त्याग पे ही चला जाए। और दूसरा રાગ રાગ राग। हाँ, किसी को कहीं ऐसे कहते हैं ना दिलचस्पी होती है, बस ठाकुर जी के श्रृंगार करने, ये बस उसी में चल पड़ते हैं। हाँ। बड़े संत का है उस तरह वो करना। પણ રહસ્ય સમજાય નહીં ત્યાં સુધી શું ઉઘડી। हाँ, कि भाई बड़े संत की आज्ञा में रह के वो जैसे कहें उसकी मर्जी में उसको राजी करने हर कोई क्रिया करनी है, वो नहीं समझे हो उसका कोई अर्थ नहीं। जैसे सूरज स्वामी की नहीं बात करी थी कि भाई रसोई अच्छी बनाते वो तो ठीक है, और कि नहीं काका जी को पसंद हो, काका जी राजी हो जावे, ठाकुर जी राजी हो जावे, गुरु जी राजी हो जावे, ऐसी भावना से जो करें वो सबसे बड़ी बात है। वो रहस्य है, वो मर्म है। हाँ। ને જાણે જે હું મારું રૂડું કરીશ। हाँ, मैं अपना ये सब करके मैं अपना श्रेय कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। जन्म मरण का फेर से बाहर निकाले ऐसे तो एक संत ही समर्थ है, अपने कोई साधन काम में नहीं आते। ને જાણે જે હું મારું રૂડું કરીશ પણ તે તો મોટા કરશે તો જ થશે। ને મહિમા તો એવો છે જે પંચ મહાપાપ બળી જાય हाँ, ને કાળો સર્પ કરડ્યો હોય તો ચડે નહીં। ये सेवा से पंच महापाप टल जावे, काला सर्प भी भाग जावे। तो हम सेवा और भक्ति, सेवा और भजन इसे में लगे रहें तो ये आजकल नहीं कोरोना वो भक्तों पे असर नहीं कर पाएगा। જો ખરેખરો વિશ્વાસ और હોય तो ये विश्वास हमें रखना है। हम माने स्वामी तो कहें आश्वासन देने के लिए, तो फिर हम वो विश्वास नहीं हुआ, वो आशीर्वाद झेलने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी संत इतने दयालु है कि पकड़ 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 करके हमारा श्रेय कर ही लेंगे। ને પોર વગર વરસાદે દાણા પકડે। और એટલે पिछले साल बारिश नहीं होने वाली थी और बारिश नहीं हुई, तब भी जमीन में से पानी निकल के फसल हुई है। વાત 254 ની સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી જે વિષયનો અંત આવે તેમ નથી। पंच विषय कोई बोले ये करके मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, नहीं। हाँ, उसकी तृप्ति कभी होती ही नहीं। हाँ, ત્યારે સુતાર માઘા ભક્તે પૂછ્યું જે वो भगत बड़ा ही था, उसने पूछा मागा भगत
निर्मूल केम थाय? बीज रूप ये विषय के राग अंदर रहे, वो कैसे नष्ट हो जाएगा? वो तो कोई बड़े संत कृपा करे तभी होता है, साधन से नहीं होगा। साधन करके अपना प्रयास देख करके वो संत राजी होगा, उसके फलस्वरूप ये बीज रूप संस्कार खाक हो जाएंगे। ત્યારે બોલ્યા છે, નિર્મૂળ થયા હોય તેના સંગથી જ્ઞાન થાય। हाँ, मानो ऐसे बड़े संत जिसके वो संस्कार निर्मूल ही हुए हो। हाँ, વૈરાગ થાય, વિવેક આવે विवेक आवे, फिर विमोक आवे, ને આત્મા અને દેહ જુદા સમજાય वो विमोक। તો નિર્મૂળ થાય। તે શુકજી, જળભરત, જનક, અંબરીશ એના વિષય નિર્મૂળ થયેલા જાણવા માટે નદીનો, ઋષિનો, સ્ત્રીનો अंत लेवो नहीं। ને વિષયનો અંત લેવો નહીં। मानी उसकी तंती छोड़ देनी, पकड़े मत रखना। हाँ, उसके साथ बहस छोड़ देना, उसके साथ की चर्चा छोड़ देनी। ને વેદ તથા શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તવું। वर्तु महाराज ने जो नियम दिए हैं, या ऐसे बड़े संत ने कोई नियम दिया हो, उसकी आज्ञा में रहना, तो फिर हमेशा भगवान रक्षा करते रहेंगे। ને વેલો ઉપરથી સુકાઈ જાય ને મૂળમાં લીલો રહે। वेलो मानो वो कहते हैं ना, टहनी ऊपर से सूख गई हो लेकिन जड़ में गीली हो तो धीरे से फिर फूटेगी। ને વેલો ઉપરથી સુકાઈ જાય ને મૂળમાં લીલો રહે તો ઉપર પણ લીલો રહે, ને મૂળમાંથી કાપી નાખે તો ટળી જાય। समझ जाए, जड़ से ही निकाल दो करके। हाँ, ને ક્રિયા તો પૂર્વના સંસ્કારને अनुसारे થાય છે। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग हो या निवृत्ति मार्ग हो, वो तो संस्कार के कारण होती है। અને कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे होवनहार। कोई कहे हो गए क्योंकि अभी कलयुग में आने वाले हैं। हाँ, मुक्त प्रगट की प्रीच बिन भटकत सब सब संस्कार। संस्कार मुक्तान स्वामी ने बनाया होगा कि प्रगट को पहचाने बिना सारा संसार इधर उधर भटकता रहता है। प्रगट स्वरूप को, प्रगट संत को આગળ થઈ ગયા તેના સારું કૂટે છે ને આગળ થાશે તેના સારું કૂટે છે, પણ આ પ્રગટ છે તેને કોઈ માનતું નથી।